welcome to our podcast Behind the Mask. Today we have a very respectful guest between us, Dr. Gandhi sir. Sir, आपको हमारे बीच में आकर कैसा लग रहा है? It is my proud to feel myself amongst you on today on this interview or podcast. What you say, I'm feeling pleasure. I'm happy. सर, थर्ड ईयर के बाद अब इंटर्नशिप में हम लोग को देख के कैसा लग रहा है? You are in the internship, so now when you have chosen a medical profession, then you should think that it is a very respectable one. On one side, it is a very respectable profession, and second, it is the full of responsibility, because you have to take care of the patient and you are between the life and death. If I say, it will not be. So you should be sincere in your job, and you should learn the subject thoroughly so you can manage your patient in a comfortable way, and you should gain the confidence of the patient. And the second thing what I will like to tell, that the passing the examination is a different than in the practical life. When you will go in the practical life, your services towards the humanity, towards the patient changes a bit different, because it is not a theoretical. There you have to be practical totally, and in that your clinical judgment and your politeness and your sincerity, that counts much for a patient. Now you are in the internship. Now you will do your post-graduation, then you will go in your practical life. And the practical life you will find it totally different from this. This knowledge will definitely help you. But clinical judgment makes a physician more perfect. That's what I want to say. सर, अगर आज आप डॉक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं? हाँ. मैं अगर डॉक्टर नहीं रहता तो शायद स्पोर्ट्समैन रहता. टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर के बारे में तो सोचा ही नहीं था. बट इन योर स्टूडेंट लाइफ मैंने कोई भी चीज सामने नहीं रखा था. नो टारगेट, नथिंग. मेरा यही था कि क्लास जाना है, पढ़ना है, पास होना है, आगे जाते जाना है, जैसा आगे सर्कमस्टेंसेस आएगा वैसा करना है. देयर वाज नथिंग, नो प्री प्लानिंग. और मैं जो डॉक्टर हुआ हूँ, मैं ये बोलूँगा इट वाज माई डेस्टिनी. नॉट फ्रॉम, मैं अपने तरफ से कभी सोच के नहीं रखा था कि आई विल बिकम ए डॉक्टर. इट इज अ डेस्टिनी ब्रॉट मी हियर. Otherwise, I was interested in sports, very much in the sports, total in the education life also. I gave preference to the games, then the study. That was my career. So then who became your inspiration for this? Inspiration, there are on different stages, there were different inspirators, not one. Initially, my sister. Because I belong to a well-off family. तो सब लोग बोलते थे कि तुम पढ़ के क्या करोगे, घर का काम कौन देखेगा. लेकिन मेरी सिस्टर जो थी वो हमेशा बोलती थी कि तुमको पढ़ना है. लेकिन पढ़ने में तो इंटरेस्ट था नहीं ज़्यादा, फिर भी चलता रहा. और sports and both I continued simultaneously.
what I am today, doctor, I say it is because of my sports. How come? Because at that time in the sports, we used to get certain marks on any competitive examination, certain marks मिलते थे. मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस में ऑन द इंटर साइंस बेसिस पे ही होता था. उस समय ये टेस्ट वगैरह नहीं थे, तो उसमें मेरे को स्पोर्ट्स के कुछ नंबर मिल गए थे. दैट हेल्प मी. व्हेन आई पास माई MBBS एंड देन मैं सोचा कि चलिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें. उसमें मेरे को 10 नंबर मिल गए थे स्पोर्ट्स के. तो 10 marks is very big. I superseded 5-6 persons in the lot. And I got admission then. At that stage, my professor of pharmacology, Dr. Deshmankar, he was very much interested in sports. बहुत स्पोर्ट था और बहुत लाइक करते थे मेरे को. तो उनने मेरे को वो किया कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, समथिंग पूछा उनने. मैं बोला सर पोजीशन तो ऐसी है मेरी. तो बोले ठीक है. देन द डे आई वॉज रजिस्टर्ड फॉर द PG, तो ही कॉल्ड मी, मेरे को बुला के बोले कि नाउ आप अपने फुटबॉल बूट्स, अपने रनिंग स्पाइक्स वगैरह सब को छोड़ दीजिए, नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर. दैट वॉज वन इंस्पिरेटर. सेकंड माई सिस्टर वॉज इंस्पिरेटर. She inspired me to go and study. So all the different decisions, my professor, surgery professor, he also helped me and promoted me how you should do. And because of the sportsman, everybody used to like me. In the medical college, sportsmen तो बहुत कम होते हैं. I was university champion in 200 meter. I was football represented university in football. तो मेडिकल कॉलेज में गया तो वो लोग मेरे को लाइक करते थे और हर स्टेज में मेरे को सपोर्ट किया. सर एज अ टीचर भी हम आपको लाइक करते हैं, तो आई थिंक इट कंटिन्यूज. टीचर्स तो मैं आई वांटेड टू बिकम ए टीचर, लेकिन मिला नहीं मौका उस समय. वहां से तो आई कुड नॉट गेट देयर. बट यहाँ पे I came because of my family problem. I joined Bhilai Steel Plant because there is no transfer. I have to see my fields and other works, and I am alone. तो अपना काम मेरे को देखना था. मैं ट्रांसफर लाइफ में जाना नहीं चाहता था. और देन माय वाइफ, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट की. शी इज आल्सो मेडिको. इंटरकॉस्ट किया हूँ, तो बहुत सपोर्ट की उसने स्पोर्ट्स के साथ साथ में इसमें. तो बट व्हेन डेंटल कॉलेज ओपन, आई रिटायर्ड फ्रॉम माय सेक्टर 9. नेमी चंद जी मेरे को आके बोले कि आप पढ़ाएंगे क्या. तो मैं बोला यार मिला तो बहुत दिन बाद मिला पढ़ाने का मौका. देन आई जॉइंड एंड आई गॉट. एंड दिस इज द, लेकिन डेस्टिनी इज एवरीथिंग. मैं आप लोगों को यही बोलता हूं कि आप अपना काम करते जाइए, आगे क्या होगा ये मत सोचिए. यू डू योर जॉब वेरी सिंसियरली, दैट्स ऑल. सर तो आपको ज्यादा क्या पसंद है, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस की टीचरशिप? अब टीचरशिप आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग, है ना. मेरे को क्लिनिकल प्रैक्टिस तो मैं अब तो कम कर दिया हूँ. अब तो एज भी उतना नहीं, मैं जब सर्जरी वगैरह करता नहीं हूँ, बंद कर दिया हूँ सब. बट स्टिल आई लाइक टीचिंग, और इसीलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि टीचिंग ऐसा लगता है कि बच्चों के सामने रहे तो मेरे पुराने दिन याद आ जाते हैं कि मेडिकल लाइफ याद आ जाती है, वो याद आ जाती है. तो अच्छा सा लगता है कॉलेज में रहने से. सर तो आपको आपका UG और PG लाइफ याद आती है हमें देख के? कंटिन्यू ऐसे ही वही चीजें रिपीट होती है जो उस टाइम होती थी. PG लाइफ, UG PG, हाँ भाई उस समय भी तो मेरा टोटल मेडिकल कॉलेज में भी मेरा टोटल इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता था. तो मेरे साथी भी वैसे थे स्पोर्ट्स में, है ना. तो
अभी भी जब आप लोगों को देखता हूँ तो आई रिमेम्बर माई हॉस्टल डेज, माई कॉलेज लाइफ, और मैं इसीलिए आता हूँ यहाँ पे। सर तो आपको जब गुस्सा आता है आपको ये लगता है कि ये तो मैं भी करता था, पर अब उसी चीज पे गुस्सा भी आता है? नहीं, मैं गुस्सा तो वैसे भी कम आता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि ये जो बच्चे लोग आज कर रहे हैं मैं भी वही करता था, तो क्या करना है, बच्चे लोग नॉर्मल है ये, क्योंकि इन माई स्टूडेंट लाइफ आई वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग्स। तो आई रियलाइज दैट, इसलिए मैं, अच्छा है, बच्चे लोगों का एंजॉय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन सर और हमने नोटिस किया है कि आपकी कीचेन में एक विसल रहती थी। मैं अभी छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, होल छत्तीसगढ़ का। आई एम सीइंग ऑल द फुटबॉल एक्टिविटीज ऑफ द छत्तीसगढ़। और अभी भी टीम सेलेक्ट करना, स्टेट टीम बनाना, ये करना, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें आ गया, आपको गाइड करना, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया हूँ। तो अभी भी मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। सर तो आप फीफा देखते हैं क्या? ठीक, यस, डेली। हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट? देखिए, फेवरेट में तो ब्राजील मेरे को वो लगता है, और आपका ब्राजील में खैर पहले तो रहा नहीं, वो हम लोगों के समय में था, वो तो 1962 बैच का हूँ, तो उस समय तो पहले हो गए, लेकिन ही इज माई फैन, पहले आ गए। और आज भी रोनाल्डो बहुत अच्छा है, अपने नेमार बहुत अच्छा है ब्राजील का, और ये आपका मेसी बहुत अच्छा है, दे आर क्लास प्लेयर्स। मेसी वेरी गुड। सर तो मेसी, रोनाल्डो और नेमार में से कौन सा बेस्ट है? ये तीनों में से तो आई लाइक मेसी। उसका गेम जो है ना, बहुत एक्यूरेसी है उसमें। रोनाल्डो तो अब कम हो गया है, इस साल मेरे को उतना अच्छा नहीं दिख पा रहा है रोनाल्डो, और नेमार तो अभी तक के आया नहीं है, वो इंजोर्ड है, लेकिन मेसी इज डूइंग वेल। मतलब आपका इंटरेस्ट अभी भी कंटिन्यू है? यस, डेली इन द नाइट 12 o'clock से जो 12:30 बजे से चालू होता है, मैं देखना चालू कर लेता हूँ, मैं देखते रहता हूँ फुटबॉल। सर तो आपका स्लीप शेड्यूल तो खराब हो जाता है? हैं? स्लीप शेड्यूल तो खराब हो? नहीं, कोई शेड्यूल खराब नहीं है, क्या शेड्यूल खराब होगा। मैच तो देखना है, एंजॉय करना है, कैसे खेल रहा है, क्या है। तो घर पे कोई बोलता नहीं है टीवी बंद करके सोने आ जाओ? हाँ, मिसेस मेरे को हमेशा बोलती हैं कि नहीं, वो बोलती हैं कि साउंड बंद कर दो, तो ठीक है, साउंड बंद करने से मेरे को, आई डोंट वांट टू लिसन द कमेंट्री, आई वांट टू सी द मैच, है ना, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सर तो आपका एक्सरसाइज का शेड्यूल आपके पीजी लाइफ से चालू हुआ था कि अब ओल्ड एज में आके? एक्सरसाइज तो उस स्टूडेंट लाइफ में तो हैवी एक्सरसाइज था मेरे। फुटबॉल खेलता था, 2-2 घंटे फुटबॉल खेलता था, माउंटेन रनिंग करता था अपने स्टेमिना बढ़ाने के लिए। मेडिकल कॉलेज के पास में ही पिसनहारी, जबलपुर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे सामने में ही, हॉस्टल के सामने में ही पहाड़ है, पिसनहारी के बढ़िया पहाड़ के ऊपर में है। इसके बैक में से दौड़ के ऊपर तक के जाना, वापिस आना, पार्टिसिपेट करना, स्टेमिना बनाना, वो तो सब तो बहुत हैवी एक्सरसाइज होती थी उस समय। तो अब तो ओनली टू मेंटेन बॉडी। सर तो वो एक्सरसाइज ज्यादा थी कि सर्जन बनने के बाद जो एक्सरसाइज होती है वो ज्यादा है? वो that exercise helped me in surgical life, because in the surgeon, I was in the Sector 9 hospital with Dr. Chaube, a renowned surgeon. 6 hours, 8 hours, 9 hours, 10 hours, we have to stand on the table. No time. Come in the morning at 8 o'clock. We do not know when we will go back. We do not know when we will get a call in the night. But again in the morning 8 o'clock we have to in the hospital. So that the stamina, which I enjoyed that, but I enjoyed that job. Then sir, if you had to choose one BDS branch, dental branch, आप कौन सा सिलेक्ट करते? बेटे, डेंटल ब्रांच तो मेरा था ही नहीं कभी। नहीं सर, ये 8-9 डिपार्टमेंट्स में से अगर आपको कोई एक सिलेक्ट करना रहा तो? बेटे, मैं उस तक कॉन्सेंट्रेट किया नहीं अभी तक के डेंटल डिपार्टमेंट में, क्योंकि मेरे इन माय टाइम डेंटल डिपार्टमेंट वाज वेरी स्मॉल डिपार्टमेंट।
in my medical college there was one dental chair, one doctor, a small room. इतना एडवांस नहीं था डेंटल। उस समय मैं देखता था कि कुछ हो गया तो आइदर यू रिमूव द टूथ और यू फिल अप द टूथ, ये था उस समय। तो और सो डेंटल में उतना मैं तो गया भी नहीं, इंटरेस्ट मैं अब डेंटल तो देखा भी नहीं, क्योंकि मैं आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई सर्जिकल टीचिंग ओनली, इसलिए उधर मैं कुछ वो नहीं कर पाऊंगा कि ब्रांच इज बेटर आर, बट लेकिन सर्जिकल साइड इज डेंटल ओरल सर्जरी बहुत एडवांसमेंट है। आजकल ओरल सर्जरी में डेंटिस्ट लोग कर रहे हैं बहुत सारे, दे आर डूइंग फैंटास्टिक सर्जरी। सर अगर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जितने भी मेडिकोज हैं तो प्लीज मैसेज दीजिए। मेरा एक ही मैसेज है, यू शुड बी सिंसियर टू योर जॉब, you should be very polite to your patient, and you should take all your best of the for the patient, not only for the money. Of course, for the livelihood, money is also important, but not only in money, but you have to care the patient. Yes. That is more important. The very noble profession. अगर आप कहीं पे जाते हैं और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं आई एम डॉक्टर, सामने वाला एक बात तो रेस्पेक्ट इमीडिएटली ही विल कम इन द रेस्पेक्ट में, दैट सच प्रोफेशन इट इज। डॉक्टर होकर के कहीं पे जाके अगर आप बोलते हैं तो आपका काम जितनी जल्दी होता है दूसरे का काम नहीं होता है। तो यू हैव टू रेस्पेक्ट दिस प्रोफेशन, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अपने एक्टिविटीज से इस प्रोफेशन के रेस्पेक्ट को मेंटेन कीजिए, है ना। तो मेरा यही कहना है कि वेरी नोबल प्रोफेशन। मैं आज भी आई रियलाइज कि मैं स्पोर्ट्स में इधर उधर जहाँ पे भी जाता हूँ, किसी कंपनी वगैरह में बात करता हूँ, व्हेन दे से आई एम एमएस इन जनरल सर्जरी, यू आर स्पोर्ट्समैन, एमएस इन जनरल सर्जरी, यू आर डूइंग दिस, एंड इमीडिएटली रेस्पेक्ट बिकॉज ऑफ द डॉक्टर नेम। जो रेस्पेक्ट होता है डॉक्टर के नाम से ही हो जाता है, तो उसको मेंटेन करना हमारा काम है। अगर हमने मेंटेन नहीं किया तो रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। वो बोलते हैं ना कि आप रेस्पेक्ट लेना जानिए, सिर्फ आप मांगिए, ये मत सोचिए कि इट इज माय राइट। आप ये भी देखिए कि आपको अपने आप रेस्पेक्ट मिलेगा, आपको उस प्रकार का अपना नेचर रखना पड़ेगा, है ना। नहीं तो कोई क्या बोलता है, आई एम सिटिंग हियर, यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग मी, नो, कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलता। रेस्पेक्ट विथ योर नेचर, विथ योर बिहेवियर, विथ योर उससे मिलता है। और आपके ऑफिस से कोई रेस्पेक्ट देता है तो टेम्परेरी है, जब तक कि आप चेयर पे बैठे हैं आपका रेस्पेक्ट है, जिस दिन बैठोगे अरे ऐसी का साला जान लो। तो दैट इज द लाइफ। और मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप अपने लाइफ में बहुत नाम कमाइए, बहुत ऊपर जाइए और रेस्पेक्ट गेन कीजिए बहुत ज्यादा। एंड टेकिंग, मैंने बता दिया, रेस्पेक्ट लेना आपके ऊपर में है। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आप टाइम निकाल के। ओके, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मैं अपने नेफ्यू के यहाँ गया गाड़ी लेके, तो एक लेडी आई, मेरे पैर पड़ी, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। मैं तो पहचाना नहीं, बोले छत्तीसगढ़ी में बोली, तो सेक्टर 9 में रहे ना, सेक्टर 9। हाँ हाँ, मेरी माँ का इलाज ऑपरेशन किया था तुमने, और मेरी माँ आज भी ठीक है और घर में अभी बैठी है। अपने पास तो कितने पेशेंट्स आते हैं चले जाते हैं, अपन तो याद नहीं रख सकते सबको, लेकिन अगर आपने जो किया है पेशेंट जरूर आपको याद रखेगा, वो कभी नहीं भूलेगा, और ऑलवेज ही विल गिव यू द रेस्पेक्ट। तो वो देख के खुशी होती है ना कि मैं तो पहचानता नहीं, मैं गाड़ी से उतरा तो वहां से आ गई वो मेरे को, बोले कि आपने मेरा इलाज। कभी कोई गांव में मिल जाता है, आपने मेरे लड़के का इलाज किया था, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन बोले कि मेरा लड़का एकदम सीरियस था,
आप 15 अगस्त में वहां पे थे, मैं आपको आके बोला कि ऐसा ऐसा है, आप तुरंत भाग के आए और मेरा लड़का ठीक है। हालांकि उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन मेरे लिए हो सकता है नॉर्मल। भाई क्यूरियोसिटी पेशेंट्स के पेरेंट्स की बहुत होती है। अपन देखते हैं कि पेशेंट ठीक है, लेकिन उनका क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर वो आपसे थोड़ा कुछ पूछ रहा है तो प्रेम से उसका बात कर लीजिए। आपको मालूम है मेरे को कुछ नहीं करना है इसमें, लेकिन अगर आपने जाके देख लिया उसको, कितना खुश होगा वो कभी नहीं भूलेगा। और आपने अगर झिड़क के भगा दिया, डांट के भगा दिया, तो दैट इज नॉट योर प्रोफेशन। आपका प्रोफेशन तो बहुत ये है ना? आज बहुत लोग मेरे को मिलते हैं, अच्छा लगता है कोई बोलता है कि आपने वो किया था, आपने मेरे को उसको बचाया, हमको अच्छा लगता है ना? आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो यही चीजें हैं।